Why MBA? Tell me about yourself. What are your strengths and weaknesses? These are some common interview questions. In your MBA journey, you are currently at a juncture जहां पे आपको इंटरव्यू कॉल्स आनी शुरू हो गई होंगी. इन कॉल्स के साथ आपको मिलता है एक फॉर्म. इस फॉर्म में आपसे सिर्फ प्रोफाइल नहीं पूछते हैं कि 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, कॉलेज में कितने थे, बल्कि there are set of questions like these which are very common across these forms. But how exactly to answer them? अगर पता भी है कि क्या लिखना है, how exactly to structure them? Hello folks, my name is Kaushal and I am the Chief Academic Officer at iQuanta. I did my MBA from IIM Calcutta and I did my BTech from IIT Delhi. I also worked at a lot of MNCs. तो मैंने ये questions time and again देखे हैं. After a few mishaps in the beginning, मैंने अपने lessons सीखे and I feel I can firmly guide you on how exactly to structure these answers. इससे आपको ना सिर्फ अपनी फॉर्म फिलिंग में हेल्प मिलेगी, बल्कि आपके इंटरव्यूज बी स्कूल हो गया, IIM हो गया, उनमें भी हेल्प मिलेगी एंड इन योर फ्यूचर करियर जब आप जॉब इंटरव्यूज दे रहे होंगे तब भी हेल्प मिलेगी. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एमबीए? देखो, व्हाई एमबीए के लिए सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए कि हाउ टू राइट दैट आंसर. उसमें 4 C's आते हैं: क्लैरिटी, कन्विंसिंग, कॉन्फिडेंस एंड इट शुड बी अलाइनिंग विद योर करियर गोल्स. एंड उसमें क्या होना चाहिए? At any good B school, it is a given that you will have 4 skills: personality development, communication skills, leadership skills, and a good network. Now let's discuss typical answers कैसे दिख सकते हैं. Let's say for a fresher, how will you write it? For a fresher, it can look like I am looking for a career in so and so industry, and an MBA degree will help me improve my communication skills as well as my personality growth so that I can land at my dream job. Plus, लॉन्गर टर्म में भी सोचना होता है. एन MBA डिग्री विल ऑल्सो हेल्प मी इंप्रूव माई लीडरशिप स्किल्स एंड इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज हेल्प मी बिल्ड अ फ्रूटफुल नेटवर्क सो दैट आई कैन हैव अ लॉन्गर टर्म फ्यूचर करियर ग्रोथ अहेड. ये आपका टिपिकल आंसर का बेस बन सकता है. ये बात हो गई फ्रेशर की. नाउ लेट्स से यू आर समबडी विद अ वर्क एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस भी 2 तरीके का होता है, बिजनेस रिलेटेड फील्ड वाला या फिर नॉन बिजनेस रिलेटेड फील्ड, लाइक IT हो गया या फिर डेंटिस्ट हो गया समथिंग. अगर आप बिजनेस रिलेटेड फील्ड में हैं तो आपका आंसर शुड लुक लाइक My MBA degree will help me accelerate my career growth. क्योंकि आप ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे थे या सेल्स कर रहे थे, MBA डिग्री आपको उसमें एक्सेलरेट कर सकता है. सो योर आंसर विल लुक लाइक एन MBA डिग्री विल हेल्प मी एक्सेलरेट माई करियर ग्रोथ एज वेल एज इंप्रूव माई द 4 points that I mentioned: personality development, communication skills, leadership development as well as fruitful network. Let's say your work experience guy with a non-business related field, जैसे कि IT हो गया, डेंटिस्ट प्रोफेशनल हो गया या फिर कोई और डिफरेंट प्रोफेशन हो गया. तब आपका आंसर और आसान हो जाता है. क्यों? क्योंकि एन MBA डिग्री विल हेल्प यू स्विच योर करियर ग्रोथ. दे माइट हैव बीन अ ट्रिगर जो कि आपको बिजनेस रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट दिखाता है, और एन MBA डिग्री विल हेल्प यू अचीव द सेम. सो योर आंसर विल लुक लाइक दैट एन MBA डिग्री विल हेल्प मी switch my career growth towards the business related side of fields because that is something I'm more interested in. Despite doing well at my current job, an MBA degree will help me provide that nudge so that I can make that switch towards business side of things because that's what interests me. Apart from including again the 4 points: personality development, communication skills, leadership development, as well as fruitful network. All right, I hope that helps on the why MBA part of it. Next question is, what are your career goals? देखो, इसका आंसर should typically marry your why MBA आंसर, क्योंकि मैंने बोला था why MBA में it should always align with your career goals. तो आपका आंसर typically will look like very similar to what your why MBA answer look like, but what an interviewer is looking for is if you are ambitious enough, and if you do have an ambition, and if you do have an aspiration, do you have a plan in place? And if you have a plan in place, do you think it is achievable? If you can convince the interviewer and yourself, you are well good to go. So your career goal answer will have your aspiration, your ambition defined, as well as your plan in place to achieve the same. Plus, it should also include both the aspects: your shorter term goal as well as your longer term goal. Shorter term में क्या आता है? Typically 5 साल का timeline कि you see yourself as a leader, तो you are leading a team or something like that. And longer term में क्या आता है? 20 years timeline, जहाँ पे you are aspiring to become a leader, you are aspiring for leadership roles so that you can manage your internal stakeholders well as well as improve and ensure that your customers are happy with your product as well as your company. Okay, I hope this provides a base for your what are your career goals question. Moving on to the next question, which is tell me about yourself. The most generic as well as the most important question. ये question आपको हर जगह देखेगा. This is the icebreaker that every interview has. आप भी स्कूल इंटरव्यू में जाओ, आप जॉब इंटरव्यू में जाओ, आप कहीं भी जाओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो पूछते ही हैं. व्हाट इट शुड हैव? इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम
वेयर आर यू फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर को एक इंसाइट आ जाएगा, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, आप थे कहाँ से, तो एक रफ आइडिया लग जाता है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी कैरी कर सकते हैं। तो वेयर आर यू फ्रॉम इज प्राइमरी। सेकेंड, व्हाट इज योर बैचलर्स डिग्री एंड हाउ एग्जैक्टली डिड यू लैंड देयर। इफ यू आर अ बीटेक, आप पहुंचे कैसे, क्यों आपको इंजीनियरिंग लेना पड़ा या फिर आपने लिया, एंड उस कॉलेज में आप क्यों हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बी ऑनर्स हो, जो भी हो, वहाँ पे क्यों हो। तो व्हाट इज योर डिग्री एंड हाउ एग्जैक्टली डिड यू लैंड देयर। थर्ड, वर्क एक्स इफ एनी, अगर आपके पास वर्क एक्स है तो उसमें रोल्स क्या थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे, एंड आप किस टीम के साथ काम कर रहे थे, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। 2 to 3 लाइन्स में शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज, ये कवर करना है। ये 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, प्रोफेशनल इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोफेशनल इंटरेस्ट एक्चुअली विल ऑल्सो हेल्प यू आंसर वाई एमबीए वाला पार्ट, कि आपको अभी कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है या प्रोडक्ट इंटरेस्ट से हो या मार्केटिंग इंटरेस्ट से हो, तो वाई एमबीए भी आंसर हो जाता है। प्लस इट गिव्स यू एन आइडिया एज वेल एज द इंटरव्यू एन आइडिया कि आपको किस चीज़ों में रुचि ज़्यादा है। तो अगेन टेल मी अबाउट योरसेल्फ का भी पार्ट हो गया। एंड करियर गोल्स एज वेल, बोथ लॉन्गर टर्म एंड शॉर्ट टर्म, 5 years, 20 years, 1 to 2 lines, 1 to 2 lines, short, crisp, concise. फिफ्थ, हॉबीज। ऑब्वियसली हॉबीज तो बोलोगे ही क्योंकि आपके ये सारा प्रोफेशनल जर्नी हो गया, वर्क एक्स हो गया, बैचलर्स डिग्री हो गया, बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू इन योर फ्री टाइम, लीजर टाइम में आप क्या कर रहे हो। डू यू लाइक टू रीड, डू यू लाइक टू स्विम, आर यू ट्रैवलिंग मच, हैव यू रिसेंटली ट्रैवल्ड। This should be a part of tell me about yourself. A very important point is to note it down somewhere so that your answer become convincing as well as confident. And इसको किसी मिरर के सामने बोल सकते हो, किसी दोस्त के सामने बोल सकते हो, अपने पेरेंट्स, भाई, कलीग, किसी के भी सामने बोल सकते हो, so that you gain the confidence on exactly how to structure, how to make your answer more convincing. This should help you cover tell me about yourself part. The next question is what are your strengths and weaknesses? An ideal rule to follow is rule of 3. रूल ऑफ 3 क्या होता है? थिंग्स टोल्ड इन बकेट्स ऑफ 3 आर यूजुअली मोर मेमोरेबल, सिग्निफिकेंट एज वेल एज मोर इफेक्टिव। सो आपको भी यहाँ पे रूल ऑफ 3 फॉलो करना चाहिए अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस में। इट्स यूज्ड अ लॉट इन स्टोरी टेलिंग, एडवर्टाइजिंग, हियर एंड देयर, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो 3-3 के बकेट्स में रखेंगे, ठीक है। और उसमें स्ट्रेंथ्स में आपको ये इंक्लूड करना चाहिए, आपको हमेशा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल स्टोरीज के साथ उसको अटैच करना चाहिए। सेम गोज फॉर वीकनेस एज वेल। ये आपको आपके आंसर को एक पर्सनल नच देगा और इंटरव्यू को भी लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली इसका स्ट्रेंथ है, इसका वीकनेस है। दूसरा पॉइंट, इट्स गुड टू टर्म योर वीकनेस एज एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। दिस शोज अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड योर ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स लाइफ, एंड टू ऑलवेज एंड योर वीकनेस पॉइंट्स विद हाउ एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू टैकल इट और ऑलरेडी टैकलिंग इट, सो दैट इंटरव्यू को लगे कि हाँ आप ऑलरेडी उसमें जो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है उसमें इंप्रूव कर रहे हो। तीसरा पॉइंट, never masquerade a strength as a weakness and vice versa. Like, I am such a perfectionist that I am not able to finish my job because I want always perfection in life. Now you're trying to sell a strength as a weakness. This you should never do. Fourth point, never lie. Be very honest about your answers. कोई भी इंटरव्यूअर बहुत इजीली कैच कर लेगा if you're lying about a strength or a weakness, or if you're lying about a story same associated with it. तो आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज आप ये नहीं कर सकते हो कि आप कोई अपना स्ट्रेंथ वीकनेस की तरह मैस्करेड कर सकते हो या फिर कोई और एडिशनल स्ट्रेंथ बोल सकते हो जो कि आप में है नहीं, बिकॉज इंटरव्यूअर कैच कर लेगा। आपके पास 3 नहीं है, आप 2 बोल लो, पर 3 बोलने के चक्कर में झूठ नहीं बोलना है। एंड फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी हम्बल एंड बी मॉडेस्ट। ज़्यादातर इंटरव्यू चेक करेंगे कि आपने जस्ट बिकॉज आपने कैट निकाल लिया या फिर आपका स्कोर बहुत अच्छा था तो आप एरोगेंट तो नहीं हो गए। So be very honest as well as very modest about your answers. I hope this helps you with a starting point on how exactly to answer these questions as well as helps you with how exactly to structure these answers. Having said that, there are a lot of more questions obviously. उसके लिए हमने iConta की तरफ से एक GDPI कोर्स लॉन्च किया हुआ है जहाँ पे ये सारा चीज़ कवर तो होगा ही, साथ में आपको 7 मेंटर्स दिए जाएंगे. These mentors are from top B schools so that you get mock PIs with one-on-one with these mentors. As well as there are few weekly sessions held जहाँ पे GK कवर होता है, वर्क एक्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, GD, ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप इंटरव्यूज एंड अदर सेशंस भी होते हैं जिससे आपको पूरी हेल्प मिल पाए so that you walk into the interview room with full preparation. So if you have not enrolled yet, enroll right now. And yeah, all the best on your MBA journey ahead. Thank you for listening.